We'll continue with the topic of urbanization. We were discussing the problems associated. The second most important problem is slums. Slums is a separate topic in your syllabus as well. So we are taking this topic. Slums are defined as residential dwellings considered unfit for human habitation as they are dilapidated, cramped, poorly ventilated, unhygienic, and lacks basic services. This is the definition by Census 2011. According to Census 2001, 5 crore population were living in slums. According to Census 2011, it got increased to 6.5 crore. That means approximately 25% was the decadal growth with respect to the population in slums. Overall, the population increased in 10 years by 17%, but this increase was 25%. It was a significant number of population which was living in slums now. Next says, according to ILO, 80% of slum population in India is working in informal sector. According to Census 2011, 1/5 of slum population belongs to SC community. I'll repeat. Slums are those residential dwellings which are considered unfit for human habitation. Approximately 6.5 crore population, according to Census 2011, is living in slums. And out of those people who are living in slums, 80% of them are working in informal sector. That means there is informalization of slum economy. And also there is caste-based segregation.
Because in India, overall, 1/10, approximately 1/10 of the population is SC community. But in slums, 1/5 of the population is SC community. That means there exists caste-based residential segregation. So, इसी point को that shows there exists caste-based residential segregation. Next. According to National Sample Survey Organization, A, there is high rate of dropouts with respect to slum children, and especially the girl child. And secondly, most slum women they are either confined to the home-based work or they are engaged in part-time jobs. Next. High incidences of crime rate along with that high incidences of stereotyping, social exclusion, in fact, according to Amnesty International, incidences of custodial violence are reported with respect to slum population. You don't rote learn the data. When you are doing the arguments, then you will think that which data can be used where. Because जब आप literally सिर्फ rote learn करते हो ना, then unnecessary you try to incorporate the data in the answer where maybe it is not even required. So you have to be very careful. जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डालो. For example, अगर slums पे आ जाए, what are the challenges with respect to slums? आपको बोलना है high incidences of crime rate, or you have to talk about the stereotyping. Even the law enforcement agencies, they stereotype, they exclude the people who are residing in slums. Then you can quote Amnesty International. If you have to explain the gravity, there is some question on proliferation of slums. Then you can quote Census 2011 data, that how 6.5 crore of the population is living in slums. So this is how it needs to be done. Is that clear? We'll give more data as and when we are proceeding.
इतना लिखा? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्लम्स. Notified slums, recognized slums, identified slums. Notified slums are the slums which are declared under law by local authority. The slums which are declared under law to be slums by the local authority, so that whatever government services, policies, programs are introduced, they are being provided to the people who are living in the notified slums. Recognized means acknowledged by local authority. However, no legal notification. लोकल अथॉरिटी एक्नॉलेज करती है कि स्लम्स हैं ये, इनको सर्विसेज देनी है, बट कोई लीगल कंपल्शन नहीं होता क्योंकि लीगल नोटिफिकेशन नहीं है. Identified slums, they are neither under the ambit of legal protection nor municipal services. जो आइडेंटिफाइड स्लम्स होते हैं वो ना तो रिकग्नाइज्ड होते हैं ना नोटिफाइड होते हैं, तो न उन्हें कोई लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, न उन्हें कोई म्युनिसिपल सर्विसेज मिलती हैं. बट द आयरनी इज 1/3 of slum population lives in identified slums. यानी अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसे स्लम्स में रह रही है जिसका कोई नोटिफिकेशन या एक्नॉलेजमेंट नहीं है. तो ना उनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन है, ना उनके पास कोई एक्सेस टू म्युनिसिपल सर्विसेज है. Is it making sense? Again, nobody is going to ask you the type of slums. This can be used with respect to explaining the gravity. What are the challenges with respect to slums? 1/3 of the slums are the identified slums, which are outside the ambit of, let us say, the legal protection of municipal services. तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा type of slum, but this is how the argument has to be incorporated while you are writing the answer. Is that clear for everyone? Next. According to UN Habitat, slums are known as urban transition crisis. According to UN Habitat, slums are known as urban transition crisis, that is, the crisis which is generated due to urban transition.
Now, I'll just explain in 1 minute मैं क्या कहना चाह रही हूँ. We knew there exists rural-urban disparity. And how can we explain this rural-urban disparity? That on one hand, the agriculture is in distress. On the other hand, there is globalization, there is industrialization, which is generating job opportunities. कह सकते? And because of this disparity, the people are migrating. But हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था ओवर अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, दैट दिस माइग्रेशन इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ ओवर urbanization. It is also creating a situation of pseudo urbanization. That means there is a pressure on existing resources which has increased the cost of living, and as a result the people have to move to informal settlements, which in this case is referred as slums. तो उनका कहना है कि ये जो रूरल अर्बन डिस्पैरिटी की वजह से माइग्रेशन हो रहा है ना, एंड एट अ पेस हायर देन industrialization, it is generating the grounds for emergence of slums or informal settlement. But this is temporary. जैसे जैसे अर्बन एरिया ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, हाउसिंग डेवलप होगी, तो ये जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है ये अपने आप अर्बन इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो जाएंगे. सो दिस इज अ टेम्पररी क्राइसिस विच इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ रूरल अर्बन ट्रांजिशन. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैं डिक्टेट नहीं कर रही, तो आगे बढ़े इसमें. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे. गिव द हेडिंग कॉजेस ऑफ proliferation of slums. Resources.
there are broadly 8 reasons which has resulted into slum proliferation. To begin with, failure of housing policy, heritage of past construction, lack of private sector in affordable housing, bureaucratic apathy, indifference, inefficiency, one-dimensional land use policy, proximity to the workplace, emergence of gated communities, and finally national urban housing and habitat policy का fail होना. National urban housing and habitat policy. I'll make you write all the things. ये बना लो. The first and foremost is failure of housing policy. I think I've mentioned that before also, that many believe that migration is responsible for slum proliferation. However, there was an expert group on urban poverty that was established under 12th five-year plan, and according to which it was found that it was not migration, because migration is bound to happen. No two regions are equally developed. Actually, it was failure of housing policy which has led to the development or emergence of slums. So the first and foremost reason for emergence of slum is failure of housing policy. अब one by one करके लिखेंगे. First pointer. According to an expert group, पहला point है, according to an expert group, जो failure of housing policy है, उसका point है, according to an expert group on urban poverty, during 12th five-year plan, highlighted that slums are the result of policy failure, and not merely rural urban migration. Slums are the result of policy failure and not merely rural urban migration. So my keyword is failure of housing policy. This is my explanation, and then write the perspective. According to Amartya Sen, it is the responsibility of the state. Result आ गया? What the hell? Sorry guys, I'm so sorry. Shit. कौन था? चुप रहो अभी तुम. डाल के देखना पड़ेगा रिजल्ट. चलो डालो पहले. कहाँ थे हम? अमर्त्य सेन का पर्सपेक्टिव डालो. अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, it is the responsibility of the state to provide social infrastructure such as housing and sanitation.
बस अभी बात कर रहे थे मैं और पवन सर, इसीलिए लेट हो गई मैं क्लास में आने में, कि हम रिजल्ट ही डिस्कस कर रहे थे। अरे यार, नेक्स्ट, हेरिटेज ऑफ पास्ट कंस्ट्रक्शन, हेरिटेज ऑफ पास्ट कंस्ट्रक्शन, हेरिटेज ऑफ पास्ट कंस्ट्रक्शन। See, let me explain. Just let me give one example to make you understand what I'm trying to say. In context of Delhi, have you observed the infrastructure around you? आप राजेंद्र नगर में रह रहे हो इतने टाइम से, आपने राजेंद्र नगर में हाई राइज अपार्टमेंट्स देखे? हाई राइज देखे? बेटा 3-4 फ्लोर को हाई राइज नहीं कहते, हाई राइज मतलब जैसे 20-24-25 फ्लोर, ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, तो यही चीज है कि आई कैटेगोरिकली रिमेंबर देयर वाज दिस वन स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन बाय शीला दीक्षित व्हेन शी वाज देयर, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर। सो शीला दीक्षित सेड कि जब उनको ये प्रपोजल दिया गया कि दिल्ली हैज ऑलरेडी सैचुरेटेड द लैंड with respect to horizontal expansion, and since population is in migrating, it is high time we should go vertical. So to which she said it is not possible because it will destroy the heritage of Delhi, because Delhi is always known for horizontal construction, it is never known for high rise apartment. आपको high rise वगैरह मिलेंगे गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में गिनती के 2 से 3 हाई राइज अपार्टमेंट्स है, एक डीएलएफ मोती नगर करके है, एक आपका उसी के आसपास बनाओ। तो द पॉइंट हियर इज वो भी अब बना है जाकर, मतलब अब से मेरा मतलब है 8-10 साल हुए हैं, उससे पहले वो हाई राइज वाला कल्चर दिल्ली का है ही नहीं। दूसरा ये माना जाता है सिस्मिक जोन में आता है, तो उसके लिए भी लोगों ने कहा कि आजकल अर्थक्वेक प्रूफ मटेरियल आते हैं, आप उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप वर्टिकल नहीं जाओगे you will not be able to accommodate the population which is in migrating in this area. But यही एक रीजन है that the urban planning has suffered. बहुत ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे दिस हेरिटेज ऑफ पास्ट कंस्ट्रक्शन, कि हमारे यहां ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होता है, इट इज नॉट एबल टू अकोमोडेट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। बेटा सरकार पे डिपेंड करता है, ये कैसी बात कर दी तुमने? यूपी में आता है ना यार, तो इट इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट। अब देखो नीतीश जी को रहना था 2030 तक, हटा दिया ना सर, डिपेंड करता है ना यार। अब वो सीनियर मेंबर है, अब राज्यसभा जाएंगे। सो लिखो हेरिटेज ऑफ पास्ट कंस्ट्रक्शन में लिखना, cities like Delhi, cities like Delhi, एक सेकंड दे दो यार, cities like Delhi cities like Delhi have historically expanded horizontally rather than vertically, leading to inefficient land use and sprawled settlements, leading to inefficient land use and sprawled, remember urban sprawl we discussed in the last lecture, sprawled settlements, full stop। इसी में लिखो, according to Patrick Gids, town planning should be such that it integrates
town planning should be such that it integrates social and environmental realities. Social and environmental realities. Clear है? ठीक. Next. Lack of private sector in affordable housing. पहले समझ लेते हैं. देखो यार, for if people are living in slums, that means they cannot afford the cost which is there in the core of the city. That means we have to come up with the idea of affordable housing. और ये जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सेक्टर होता है, इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो वैसे ही इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं आता है. सो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन सोशल हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग. तो ले दे के कौन बचा? द गवर्नमेंट सेक्टर. अब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एक छोटी सी दिक्कत आती है. आप लोगों ने कभी मुखर्जी नगर सुना है ना? मुखर्जी नगर में एक अपार्टमेंट्स है, उनको कहते हैं सिग्नेचर अपार्टमेंट्स, ठीक है, और वो द कॉर्पोरेशन एज इन द गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड. अब उसकी ये हालत हो गई थी कि मतलब कभी भी गिर सकती थी बिल्डिंग. तो वहां के लोगों को बोला गया कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, 2 साल के लिए आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ, और उस 2 साल में ये बिल्डिंग हम दोबारा बना के देंगे. अगर पहली बार आप सही से बना देते तो ये दिक्कत आती. अब पहली बार भी आपने बनाया, खराब उसमें वो मटेरियल यूज करा, जिसकी वजह से क्या दिक्कत आई कि नाउ इट इज इन अ वेरी डिलैपिडेटेड सिचुएशन. अब लोगों को आपने पार्शियली फॉर टेम्पररी पीरियड शिफ्ट होने को कहा, भले ही आप उसका पैसा दे रहे हो, आपको भी तो नुकसान हो रहा है ना. डबल डबल वैमी है. और उन लोगों को जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुई कि 2-3 साल के लिए उन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है. तो अब ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डिलीवर क्वालिटी, and private sector doesn't want to provide affordable housing because it is not a profitable venture. So that has created vacuum in the arena of affordable housing, and that is why people have no other option but to live in slums. क्योंकि gated कम्युनिटी वो अफोर्ड कर नहीं सकते और बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप हो नहीं रही है. सो ऑल दे हैव द सॉल्यूशन इज टू लिव इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट. और जो गवर्नमेंट लेकर भी आती है ईडब्ल्यूएस के लिए, लोअर इनकम ग्रुप के लिए, डीडीए के फ्लैट्स वगैरह आते हैं, तो जहां आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप देखो तो कि प्रॉक्सिमिटी टू द वर्क प्लेस है भी या नहीं. अगर प्रॉक्सिमिटी टू द वर्क प्लेस नहीं होता तो लोग वहां आके नहीं रहते. तो ऐसे में क्या होता है, अगर उनका नाम आ भी जाता है लिस्ट में, तो फिर वो थोड़े से ज्यादा पैसों में किसी और को सेल कर देते हैं या रेंट आउट कर देते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट फीजिबल फॉर देम टू लिव इन दोज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसी में ऐड करो. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्राइवेट डेवलपर्स prefer commercial real estate. Private developers prefer commercial real estate over affordable housing, due to higher profitability. For example, as in the perspective, according to Janice Perlman, emphasized market's failure to address housing for the poor, has emphasized market's failure to address housing for the poor. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी. इसमें तो क्या ही एक लाइन लिखो, ब्यूरोक्रेटिक inefficiency, delayed approvals, and corruption
and corruption hinders public housing initiatives, public housing initiatives, hinders public housing initiatives. According to Ravinder Kaur, state housing programs fail. According to Ravinder Kaur, state housing programs fail due to corruption and poor identification of beneficiaries. Due to corruption and poor identification of beneficiaries. अगर तो 10 मार्कर है, आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस बिफोर, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट गुल कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली राइट द थिंकर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि नंबर तो देखो उसी के मिलने. तो अगर 10 नंबर का है तो एक्सप्लेनेशन मत देना, 20 नंबर का है तो एक्सप्लेनेशन देना. ठीक है. नेक्स्ट, वन डायमेंशनल लैंड यूज पॉलिसी. इसका मतलब है आप जब लैंड का यूज प्लान कर रहे हो, यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ द लैंड. You are not looking into the social aspect, the transportation aspect, the environmental cost which is associated. आज आपको लैंड की जरूरत थी क्योंकि आपको लगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. अब उसकी वजह से एनवायरमेंट को क्या डैमेज हो रहा है, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. उसकी वजह से वेदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज नॉट देयर, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. सो इन अ वे, राइट डाउन, focus on land monetization, focus on land monetization, point hai, focus on land monetization and neglect of social transport and environmental aspects in urban planning. Neglect of social, transport and environmental aspects in urban planning. Full stop. Example, Mumbai's housing crisis excludes poor from formal housing. Mumbai's housing crisis excludes poor from formal housing. Excludes poor from formal housing. कुछ ना समझना, हमारे यहाँ स्पेक्यूलेटिव प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा होती है. जैसे अगर कोई अनाउंस कर दे गवर्नमेंट कि यहां से मेट्रो पास होने वाली है, अब स्पेक्यूलेशन शुरू हो जाता है. अभी मेट्रो पास हुई नहीं है, ठीक है, अभी होने वाली है, तो इस पे एक लॉट प्राइस, जैसे अगर कोई जगह है जो आपको लेटर से उसका बेस प्राइस है 7,000 पर स्क्वायर फीट, अब वो ऑटोमेटिकली 10,000 तो इसी बात पे पहुंच गया क्योंकि ये आ गया कि यहां से मेट्रो पास होने वाली है. सपोज करो और 2 साल में वो बिल प्रपोजल पास हो जाता है कि अब यहां मेट्रो बनेगी, तो वो अपने आप 10 का 13,000 हो जाता है. और अगर वो 5 साल में मेट्रो वहां बन जाती है तो वो 20 से 25,000 हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो बहुत बार क्या है, देखो लैंड तो स्केर्स है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और स्पेशली इन अर्बन एरियाज जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां पे वैसे ही लैंड की स्केर्सिटी है, और जब इसमें ये स्पेक्यूलेटिव प्राइसिंग ऐड हो जाती है तो जो पुअर है वो फॉर्मल हाउसिंग से अपने आप एक्सक्लूड हो जाता है. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? नेक्स्ट, अब देखना बहुत जल्दी नोएडा में क्या हुआ है कि उन्होंने मेट्रो पास कर दी है. अब वो पास हो गया है प्रपोजल, वो एक्सपेक्टेड है कि 2031 तक बन जाएगी मेट्रो. अगर वो मेट्रो बन जाती है तो उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगा. मैंने आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, जेंट्रिफिकेशन. अब जब उस एरिया का प्राइस बढ़ गया, अब ये पता है लोगों को 5 साल में मेट्रो आ रही है, इसका मतलब है इस जगह का प्राइस और 5 साल बाद बहुत हाई होगा, तो जिनके पास पैसा है वो वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, वो वहां आकर उस एरिया का रीडेवलपमेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है 5 साल बाद क्या होने वाला है और उनके पास रिसोर्स भी है. फिर धीरे धीरे जो लो इनकम ग्रुप वहां अभी रह रहा है वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा.
इज इट मेकिंग सेंस? ये हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो मैं आपको आज एग्जाम्पल से रिलेट करके बता रही हूं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है? चलो, हाँ इसीलिए, हाँ इसीलिए प्राइस इतना हाइक हुआ था। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी टू वर्क प्लेस। Slums emerge near markets, slums emerge near markets, comma, construction sites, or industrial zones for ease of work and low transport cost, for ease of work and low transport cost। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल देके बताया था कि जहां पे वर्क अपॉर्चुनिटी होगी ऑटोमेटिकली स्लम्स वहीं पर बन जाएंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, मैंने आपको डीएलएफ का एग्जांपल दिया था कि वहां रहते रहते कंस्ट्रक्शन हुआ, अब जहां अपार्टमेंट्स बने वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो उसी के बगल में वो करीमपुर एरिया का पूरा स्लम है which is providing the domestic helpers, and remember 80% of your workforce is in the informal sector। तो चाहे वो स्ट्रीट वेंडिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्पर्स हो, चाहे वो लेट अस से जो होम बेस्ड प्रोडक्ट्स बना के बाहर सेल करते हो, तो ये सारा किस में आता है? इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। इज दिस क्लियर? इसमें एक पर्सपेक्टिव लिखो। अकॉर्डिंग टू संदीप बुर्रा, according to Sandeep Burra, slums are the solution for affordable housing close to the livelihood, full stop। तो स्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखिए, फॉर मेनी पीपल इट इज अ सॉल्यूशन क्या? जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए और काम काज की जगह के पास चाहिए, सो ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स। नेक्स्ट, गेटेड कम्युनिटी। यार गेटेड कम्युनिटी की वजह से ना लैंड बहुत खराब हो गई है। खराब से मेरा मतलब है जो रह रहे हैं उनके लिए तो लैंड का बहुत अच्छा यूज है। अब जैसे फिर वही एग्जांपल डीएलएफ मोती नगर, आप जब डीएलएफ मोती नगर की अप्रोच रोड पे कभी गए ना तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल पुराना इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का बना हुआ है एंड दैट अप्रोच रोड इज नॉट एट ऑल गुड। द मोमेंट यू एंटर डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स मोती नगर, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये दिल्ली है। इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। लोग बाहर से आके वहां फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। वहां पर क्या नहीं है? वहां मॉल है, वहां कम्युनिटी सेंटर है, वहां 3-3 बड़े स्विमिंग पूल्स हैं, सारे कोर्ट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर इन डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स। अब आप ये देखो कि वहां कौन रह पा रहा है जो उस घर को अफोर्ड कर पा रहा है? वहां एक छोटा सा घर 1100-1200 स्क्वायर फीट का घर 3 करोड़ का है। वहां जो उनके बड़े घर है 4000 स्क्वायर फीट के, वो उस टाइम पे 7 करोड़ के थे, मैं आज मान लेती हूँ वो कम से कम 10 करोड़ के हैं। तो वहां वो रह पा रहा है जो वो उतना पैसा अफोर्ड कर सकता है। अब देखो बोलो कि वो क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? घर उतना बड़ा नहीं है जितने का पैसा है, वो रह 1200 स्क्वायर फीट में ही रहे हैं, लेकिन उसका वो 3 करोड़ दे रहे हैं। वो 3 करोड़ किस चीज का दे रहे हैं? उस लाइफस्टाइल का, जहां पे आपके पास स्विमिंग पूल्स, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग मॉल, सब कुछ आपको अंदर, और बहुत जल्दी वहां पे मूवी हॉल भी आ रहा है, द थिएटर। सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू इनसाइड दैट। आपने कितनी लैंड खराब करी? जिस लैंड पे आपने 3-3 बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए, उतने पे कितने घर बन सकते हैं? So the point I'm not saying, this is how capitalism works। जो पे कर रहा है उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो at the cost of what? At the cost of many people who can't afford this living and hence they have no other option but to live in slums। और ये होता है relative deprivation। जब आप अपनी लाइफ को ऐसे कंपेयर करते हो then you feel relatively deprived। लिखो, spatial segregation and real estate
spatial segregation. Ah, uh, one of my student, and she also helps me with the content writing. So she has cleared with sociology, 235 rank है, तो most probably IPS मिल जाएगा, ठीक है? So and I'll tell you something about her since she has shared. I was very sure. और इसके बारे में एक बात बताती हूँ. इसका इंटरव्यू रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ था नहीं रिजल्ट पहले आ गया 2 या 3 तारीख को इंटरव्यू की लिस्ट आई थी कि कब से इंटरव्यूज हैं. इसका 9 तारीख को इंटरव्यू था. और आप एक हफ्ते में क्या ही तैयारी कर सकते हो, बट शी इज सच अ डेडिकेटेड पर्सन. शी इज ऑलवेज देयर, सो शी हेल्प्स मी अ लॉट विद द कंटेंट राइटिंग. एंड देन आई आस्क्ड हर कि तुम तो अभी एग्जाम दे रही हो, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ कंटेंट? सो शी ऑलवेज टोल्ड मी कि मैम इसी बहाने ना मैं प्रैक्टिस में रहूंगी और इसी बहाने आप मुझे फीडबैक देती रहेंगी आंसर राइट, क्योंकि देखो यार जब वो काम कर रही है तो मैं फीडबैक दूंगी ना कि आंसर ये ठीक से नहीं बना ये और मैंने ये बात नोटिस करी थी और मैंने इसको ये कहा भी था, ज्यादा बड़े शब्द हो जाएंगे, मैंने इसको कहा था कि इसने कि मैम होगा नहीं होगा थोड़ा स्ट्रेस है. मैंने कहा चिंता मत कर, मेरे लिए जितने भी कंटेंट राइटर्स ने काम किया है ना सबका हो ही गया है. सो मैंने तो ऐसे बोल दिया. बट द गुड थिंग इज दैट, नहीं कहने का मेरा मतलब है कि इफ यू विल रिमेन इन दैट प्रैक्टिस. और क्या डेडिकेशन है. 9 तारीख को इंटरव्यू दी थी, 10 तारीख से फिर फोन आ गया, मैम कौन से आंसर्स बनाने हैं. मैंने कहा तू सांस तो ले ले, जी ले बेटा, कल इंटरव्यू दे के आई है. कहती नहीं मैम ऐसे क्या ही करूंगी, और आज भी काम कर रही है. सो द पॉइंट हियर इज कि काम, आप समझ रहे हो, काम नहीं है, वो लिटरली पढ़ाई ही कर रही है, वो सोशियोलॉजी की ही पढ़ाई कर रही है. एंड दिस इज हाउ शी हैज क्लियर्ड दिस एग्जाम. सो द पॉइंट इज रिमेन कंसिस्टेंट, सूनर और लेटर यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है. सो राइट कहाँ थे हम? गेटेड कम्युनिटी. तो हमने ये लिखा स्पेशियल सेग्रीगेशन एंड रियल एस्टेट ड्रिवन प्लानिंग हैव लेड टू एलीट एनक्लेव्स. नहीं लिखा ना, चलो लिखा. रियल एस्टेट ड्रिवन प्लानिंग हैव लेड टू एलीट एनक्लेव्स and marginalization of urban poor and marginalization of urban poor. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट लास्ट लिखेंगे नेशनल अर्बन हाउसिंग हैबिटेट पॉलिसी. इसमें एक पर्सपेक्टिव है सास्किया सैसन का, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, याद तो कर नहीं पाएंगे इतना सारा, छोड़ो. लास्ट लिखो नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी. नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी. ये पॉलिसी का सिंपल था कि हर साल 15% लैंड हम ईयरमार्क्ड करेंगे फॉर सोशल हाउसिंग. वो किया नहीं. ईयरमार्क्ड मतलब हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर सोशल हाउसिंग बनाएंगे. सोशल हाउसिंग का मतलब होता है अफोर्डेबल हाउसिंग, बट वो किया नहीं. तो बेसिकली पुअर इंप्लीमेंटेशन था ऑफ दिस पॉलिसी, एज सिंपल एज दैट. तो बस एक लाइन में लिख लो. द पॉलिसी फॉर रिजर्विंग 15% land, policy for reserving 15% land for social housing remains poorly implemented. Full stop. According to UN Habitat report, there exists a gap between policy vision and on ground execution. Policy vision and on ground execution. Full stop. Now very quickly just read it, and if you get the question, the reasons for proliferation of slums, will you be able to write a 10 or a 20 marker?
तो वो आज थोड़ी ना कहा है, एआई तो अभी आया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आने तो एआई उस तरह से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आया ही नहीं है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक और चीज, एक सेकंड, रेलेवेंस की बात नहीं होती बेटा, ये देखो हेडिंग की बात होती है। मैंने कॉन्टेम्पररी पर्सपेक्टिव बताया, क्या लिखा है, आगे बढ़े। इसी बात को तो काउंटर करेंगे कि ट्रांजिशन कहां रह गया, परमानेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई है और इनकी प्रॉब्लम तो और ज्यादा बढ़ेगी। सबसे ज्यादा अब एआई तक भी क्यों जा रहे हो? क्या डीमोनेटाइजेशन के वक्त इनकी प्रॉब्लम नहीं थी? वापस गए थे ना, कोविड में भी वापस गए थे ना, क्योंकि कैसे सरवाइव करोगे यार। कहां थे हम? हाँ, ये पूरा समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट डालेंगे। हाँ जी, क्या था? आप टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट पॉइंट ये कह सकते हो कि जो लास्ट पॉइंट है ना, दैट इज अ स्पेसिफिक एरिया। ओवरऑल ऑल्सो हाउसिंग पॉलिसीज हैव फेल्ड। कैसे फेल हुई? बाकी जितने पॉइंट्स लिखे ना वो कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट का ही इलेबोरेशन हो जाता है। कैसे हाउसिंग पॉलिसी फेल हुई? कि आप वर्टिकल एक्सपेंशन नहीं कर रहे। कैसे फेल हुई? आप सिर्फ लैंड के मोनेटाइजेशन पे फोकस कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट और उन सब चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हो। कैसे हाउसिंग फेल हुई? प्राइवेट सेक्टर आ नहीं रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर इनएफिशिएंट है। कैसे फेल हुई? फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी फ्रेमिंग और एग्जीक्यूशन में गैप है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये एक तरह से आप मान सकते हो इलैबोरेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इतना लिखा हमने, अब लिखेंगे हेडिंग, deprivation vis-a-vis slums. What are the different types of deprivation which is existing in slums? The first is health deprivation. Lack of wash. मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, वॉश, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब स्लम्स की डेफिनेशन ही कहती है कि बेसिक सर्विसेज नहीं है, तो मैं कह सकती हूं लैक ऑफ वॉश। अब अगर आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन नहीं है, तो क्या मैं कह सकती हूं कम्युनिकेबल डिजीजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं? हाई डिजीज बर्डन with respect to communicable diseases. In fact, NFHS 5 report says slums are the hotspots of communicable diseases. सिमिलरली NFHS 5 की दूसरी मतलब रिपोर्ट कहती है ओनली 40% ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम्स आर immunized. Same NFHS says around 50% children in slums are malnourished. Similarly, NFHS report says high incidences of under 5 child mortality rate in slums, 63.4. ये सारी NFHS का ही डेटा है।
तो अगर डेप्रीवेशन पे या स्लम्स के चैलेंजेस पे आए और आप हेल्थ डेप्रीवेशन कर रहे हो तो वहां डेटा काम आएगा ऑटोमेटिकली। फिर क्या है ना, देखो दो तीन चीजें, या तो सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर लो, या थिंकर लिख दो, या डेटा दे दो। अगर करंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है और थिंकर नहीं लिखकर आप टर्मिनोलॉजी या डेटा दे रहे हो तो भी आपको बराबर के नंबर मिलते हैं। हमने हेल्थ डेप्रीवेशन लिख लिया सबने, डेटा लिखा सबने। नेक्स्ट लिखो विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। सिक्सटी थ्री, क्या कुछ रह गया क्या? नहीं। एजुकेशन, हाँ जी हाँ जी, क्या? हाई इंसिडेंसेस ऑफ अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट का मतलब ही होता है द चिल्ड्रन हु आर डाइंग बिफोर द एज ऑफ 5, सो दैट इज 63.4। अच्छा, किसके हिसाब से निकालते हैं? पर 1000 लाइव बर्थ। तो पर 1000 लाइव बर्थ में 63.4 बच्चे हैं जो 5 साल पूरे होने से पहले दे आर डाइंग। एंड वाई दे? कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, मैल नरिशमेंट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एनीथिंग कुड बी द रीजन। एजुकेशन, एक ना आर्टिकल आया था, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय आशा इंडिया, literacy rate in slums is 56% and dropout rate in slums is around 46%. इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेम डेटा ILO 80% of slums is working in informal sector, and since they are working in informal sector they have limited access to formal credit system. Hence, there is high incidences of debt traps. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेप्रीवेशन, इसमें लिखो lack of wash, second high density of population, high density of population, high density of population, that is, for example in Dharavi, for example in Dharavi 2,70,000, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 2,70,000 people per square kilometer, 2,70,000 people per square kilometer. It is one of the most densely populated area in the world. आप खुद इमेजिन करो, स्क्वायर किलोमीटर 2,70,000, दैट इज द डेंसिटी। इज दैट क्लियर? इसी में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू NFHS 5,
according to NFHS 5, 19% of urban households, 19% of urban households still lack improved sanitation facilities. Improved sanitation facilities. 19% of urban households still lack improved sanitation facilities, whereas around 30% do not have access to safe drinking water. Whereas around 30% do not have access to safe drinking water. Clear है? Last, deprivation. Legal and social deprivation. 5 लिखने थे हमें. Health, education, economic, infrastructural and legal and social deprivation. Legal and social deprivation. इसमें जो हमने identified slums वाली बात लिखी थी ना, वो point यहाँ लिखना है. Many slums are not officially recognized. Many slums are not officially recognized, denying residents access to government schemes and basic services. Government schemes and basic services. Government schemes and basic services, full stop. Slum dwellers often face stigma. Slum dwellers often face stigma and discrimination affecting their integration into broader society. Affecting their integration into broader society. Affecting their integration into broader society. Clear है? तो बस एक इसमें पर्सपेक्टिव डालो. According to Herbert Gans, slum dwellers are hard working. Slum dwellers are hard working, marginal man. Slum dwellers are hard working, marginal men who aspire to move up. Who aspire to move up, but are blocked structurally. Aspire to move up but are blocked structurally. मतलब एस्पिरेशंस तो बहुत हाई हैं, इसीलिए अर्बन एरियाज में आते हैं, बट ये जो स्ट्रक्चरल ब्लॉकेजेस है बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू इंप्रूव देयर स्टेटस. यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, स्कॉलरली इनसाइट्स. स्कॉलरली इनसाइट्स. टेबल भी बना सकते हो, जनरली भी लिख सकते हो. पहला अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन. According to Amartya Sen,
अमर्त्य सेन की ना एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर पावर्टी पे सवाल आ जाए या कहीं ऐसा जहां आपको इनइक्वालिटी दिखानी हो, डेप्रीवेशन दिखाना हो, आप बिना किसी झिझक के अमर्त्य सेन को कोट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, पावर्टी रेफर्स टू deprivation of basic capabilities in life, deprivation of basic capabilities in life, rather than mere lowness of income, rather than mere lowness of income। मतलब सिर्फ इनकम लोनेस, LOWNESS, तो सिर्फ इनकम कम होने को पावर्टी नहीं कहते हैं। जब बेसिक कैपेबिलिटीज, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर, हाइजीन, एजुकेशन, ये सब डिप्राइव्ड हो, देन इट इज रेफर्ड एज पावर्टी। सो कैन वी से अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, slum defines urban poor because they are deprived of the basic capabilities of life। अभी deprivation की बात करी है, so write down। Hence, slums are defined as dwellings of urban poor, dwellings of urban poor। फुल स्टॉप। इसी में एक पर्सपेक्टिव और ऐड करो। According to Jan Bremen, over and pseudo urbanization has led to urbanization of poverty, has led to urbanization of poverty। पहले अर्बन पुअर का या अर्बनाइजेशन ऑफ पावर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप पिछली जितनी भी स्कीम्स उठा के देख लो विथ रिस्पेक्ट टू पावर्टी एलिविएशन, दे वर ऑल मेंट फॉर रूरल एरिया, क्योंकि अर्बन एरिया तो डिफाइंड ही था एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। कभी लगा ही नहीं कि अर्बन एरिया में भी पुअर हो सकते हैं, बट दिस वाज द स्पिल ओवर इफेक्ट, क्योंकि रूरल एरियाज डेवलप हुए नहीं, बहुत सारे लोग आउट ऑफ डिस्ट्रेस माइग्रेट होते रहे और ऐसी जगह माइग्रेट होते रहे जहां पे देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटीज वर नॉट टू द एक्सटेंट व्हिच कुड हैव अब्सॉर्ब्ड एवरीवन, व्हिच क्रिएटेड ग्राउंड्स फॉर ओवर अर्बनाइजेशन एंड सूडो urbanization। So that spillover has created urbanization of poverty, which constituted slums। लिखो, which constituted slums। नेक्स्ट, ऑस्कर लुइस, ये आपने पेपर 1 में भी पढ़ा होगा, कल्चर ऑफ पावर्टी। ऑस्कर लुइस, कल्चर ऑफ पावर्टी। जब कोई चीज बहुत परसिस्टेंट होती है ना और ओवर जनरेशन होती है तो वो आपका कल्चर बन जाता है। जैसे स्लम्स आर डिफाइंड बाय कल्चर ऑफ पावर्टी। स्लम्स को रिलेटिवली डिप्राइव्ड अब फील भी नहीं होता, क्योंकि देखो आपको रिलेटिवली डिप्राइव्ड कब फील होगा? व्हेन यू आर लुकिंग एट समवन हु इज डूइंग बेटर देन यू। But everyone in slums are leading the same life. They have the same kind of deprivation. As a result, they don't feel relatively deprived. All of them have been denied education. All of them have been denied health infrastructure. All of them have been denied formal employment. And this deprivation is not very limited to a particular generation. It is extended over generations. So a culture of poverty has been created. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। वैसे भी कहते हैं ना कि गर्मी और बेइज्जती महसूस होने से फील होती है। अगर आप फील नहीं करोगे ना तो ना आपको बेइज्जती महसूस होगी ना मतलब गर्मी। तो ये कहावत है, जैसे बहुत बार हम लोग बोलते थे और ये हमें क्यों बोली गई थी, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग तो अब एसी वेसी है, हमारे टाइम पे वो टेबल फैन होते थे कोचिंग में, तो हम लोग बार बार सर को बोलते थे कि सर 2 ही टेबल फैन हैं, 800 बच्चे बैठे हैं, 800 बच्चे।
बत्रा के बेसमेंट में 2 टेबल फैन के साथ और एक कूलर, जो जब चलता था तो सर की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, तो कूलर बंद करवाना पड़ता था। तो उसमें सर ने हमें कहा था कि बेटा महसूस करो कि एसी चल रहा है, महसूस करो कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कहते थे गर्मी आपको महसूस ही नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है चलो। सो राइट डाउन। हमने ऑस्कर लुइस का पर्सपेक्टिव नहीं लिखा ना, उसमें लिखो persistent poverty creates culture of poverty. Persistent poverty creates culture of poverty where deprivation becomes self-perpetuating. Deprivation becomes self-perpetuating. For example, in slums, एक बात देखो, ऑस्कर लुइस ने कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है, स्लम्स में हम अप्लाई कर रहे हैं। सो इन स्लम्स, lack of stable employment, poor education, and social exclusion, create patterns of marginalization, that traps community in cycle of poverty. साइकिल ऑफ पॉवर्टी। हमने कितने पर्सपेक्टिव लिखे? 3 लिखे, एक और लिख लो, माइक डेविस का लिख लो, अच्छा पर्सपेक्टिव है, प्लैनेट ऑफ स्लम्स दिया है उन्होंने। और देखो पर्सपेक्टिव सेम ही है जो अर्बनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का था, कि बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट कर गए, अफोर्डेबल लिविंग थी नहीं, इसलिए वो जाके स्लम्स में रहने लग गए, इसलिए एक प्लैनेट ऑफ स्लम्स क्रिएट हो गया। आप वर्ड से ही समझ जाओगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा एक प्लैनेट ऑफ स्लम्स ही बन गया, कि अर्बन एरिया में आओगे तो एक कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो स्लम्स में रह रही है। और वो स्लम्स आए क्यों? क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ उतनी हुई नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, तो नो अदर ऑप्शन बट टू लिव इन स्लम्स। तो रीजनिंग रिमेन्स द सेम, लेकिन माइक डेविस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है प्लैनेट ऑफ स्लम्स, तो ये लिख सकते हैं। माइक डेविस का लिखो, प्लैनेट ऑफ स्लम्स। रीजन वही सेम रहेगा, रैपिड urbanization has led to proliferation of slums. Rapid urbanization has led to proliferation of slums due to agrarian distress, comma, housing inequalities, agrarian distress, comma, housing inequalities and economic policies, housing inequality and economic policies. Clear है? ठीक है? Now, quickly revise the slums. Till then, I'm searching for the questions, and then we'll see what kind of questions have been asked. बताऊं क्वेश्चंस? हाँ, क्वेश्चन लिखो। Write a detailed note
on effect of, write a detailed note on effect of growing slums in urban areas. Write a detailed note on effects of growing slums in urban areas. 20 marker. Next. Discuss different forms of deprivation. Discuss different forms of deprivation associated with slums. Discuss different forms of deprivation associated with slums. 10 marker. Next. Are slums the manifestation? Are slums the manifestation of industrialization and urbanization in India? Are slums the manifestation of industrialization and urbanization in India? Explain. 10 marker. ये तो हो जाएंगे, सिंपल सवाल है. एक अच्छा सवाल आया था, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड जब ये सवाल आया. राइट डाउन. Compare the problems of Dalit poor family. Compare the problems of Dalit poor family living in a slum with a similar family living in rural area. I'll repeat, compare problems of a Dalit poor family living in an urban slum with a similar type of family living in rural area. देखो यार, इस पे तो मैं सच बता रही हूँ, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. अब पुरानी बात हो गई, 2017 में आया था, 10 नंबर का सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल वो कभी भी whatever you have studied so far, ये उसका मतलब दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग विच हैज टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर, कि आपको किस हद तक ये सवाल समझ आया है. ठीक है. और क्योंकि कंपैरिजन है, 4-5 हेडिंग्स आइडेंटिफाई कर लो कि आप किस तरह से इस पे कंपैरिजन कर सकते हो. एंड देन यू ट्राई टू टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ कास्ट रिजिडिटीज, कास्ट क्लास ओवरलैप, ठीक है, नेचर ऑफ डेप्रीवेशन, ये सारी बात. इसमें एक और चीज भी ऐड हो सकती है, जो कहते हैं ना कि जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, या जिसको हम डिवियंस कहते हैं, कि आपको किस एरिया में ज्यादा डिवियंस देखने को मिलेगा. और ये तो एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया. इसको और थोड़ा ब्रॉड कर सकते थे, कंपैरिजन बिटवीन रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर. वो भी तो एक सवाल बन सकता है. उस पर मैं एक राइटअप दे दूंगी, मैंने जीएस के लिए बनाया था, अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर, पर वो टॉपिक यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे दूंगी. लेकिन इसको आप लिखना, मैं आपको. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक्सेस टू रिसोर्स है, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है. ठीक है. तो आप वहां पे देखो कंपेयर बोला है, तो आपको बताना पड़ेगा कहां सिमिलर है और कहां थोड़े बहुत डिफरेंस है. देखो, अगर उनको डिफरेंस पे फोकस करना होता ना, वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लिखते. वो बताना ही आपको ये चाह रहे हैं, पूछना या तो ये चाह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटीज रूरल एरिया में एग्जिस्ट कर रही थी वही रेप्लिकेट हो रही हैं अर्बन एरिया में, बस केवल कास्ट और क्लास का फर्क है. इज इट मेकिंग सेंस? एक पॉइंट इसमें जो कंपेयर में कॉन्ट्रास्ट आ सकता है वो ये आ सकता है कि रूरल एरिया में तो आज भी कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है, बट अर्बन एरिया में वो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. जैसे हेरोल्ड गोल्ड की एक स्टडी है, रिक्शे वालाज इन लखनऊ, तो उसमें वो यही बताते हैं कि वर्क प्लेस पे वो लोग सेक्युलर हैं, लेकिन घर जाते ही the caste notions they comes into practice. So how the workplace has become secular. तो अभी उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, देखते हैं कि हम बना पा रहे हैं आंसर की नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो आपको ऑन द स्पॉट आंसर बनाना पड़ेगा. अगर तो ऑप्शन में छूट रहा होगा तो छोड़ देना, ठीक है, रिस्क नहीं उठाएंगे पेपर में. लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 1 या 5 का पार्ट है और लिखना ही है तो ऑन द स्पॉट आंसर राइटिंग करनी है. ठीक है. किस चीज का?
इसमें कंपेयर द प्रॉब्लम ऑफ, ये आप ये बात कर सकते हो, कास्ट से उठा लो, क्योंकि मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है हमेशा याद रखना। चलो ये तुमने सवाल पूछ लिया, जब भी कॉन्टेक्स्ट जो भी होगा क्वेश्चन का वही इंट्रो होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है? नहीं, दलित पुअर। So you have to talk about, अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी दिया था, soil grows caste, machine makes classes. So there is a general perception that rural area is governed by caste and urban by classes. So let us now compare what is the situation of Dalit poor in rural and urban areas, and then you can start. ये बहुत सिंपल, इसको ना रटने की जरूरत नहीं। जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछें वो कॉन्टेक्स्ट इंट्रोडक्शन है, चाहे वो सवाल कोई भी हो। By default, this is how you write the answer. Is that clear? और एक दो क्वेश्चन लिख लो। अच्छा पहले मुझे बताना, मैंने ये क्वेश्चन पहले दिया है क्या? नहीं, अच्छा ये तो नहीं दिया होगा। लिखो, अर्बन स्लम्स are site of social exclusion. Urban slums are site of social exclusion. Explain. Ten marks. Urban slums are the site of social exclusion. Health exclusion, educational exclusion, caste-based exclusion, economic exclusion, infrastructural exclusion, stigma which is existing. तो हमने तो बहुत सारे पॉइंट्स करें, उसी को मिला जुला के ये आंसर तैयार कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो भी इंटरेस्टिंग है, लिखो। अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया replicates the rural caste kinship patterns. Replicate rural caste kinship patterns. Discuss. मतलब रूरल एरिया में जो कास्ट किनशिप एग्जिस्ट करता है वही अर्बन एरिया में रेप्लिकेट हो रहा है। तो जो अर्बन एरिया का अर्बनिज्म था लुई वर्थ का, कि यहाँ पे अनोनिमिटी है, हेट्रोजेनिटी है, इंडिविजुअलिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रूरल के कास्ट किनशिप पैटर्न्स है वो यहाँ रेप्लिकेट हो रहे हैं। ये टॉपिक का आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, जब कास्ट पढ़ाया था ना ये वहां मिलेगा। कास्ट में मैंने सतीश देशपांडे की स्टडी, आपको याद होगा अमित थोराट ओमकार जोशी की स्टडी, फिर रेसिडेंशियल पैटर्न जो सेग्रीगेशन थे हमने किया था ना, रीना रामदेव की स्टडी एंड एवरीथिंग, वो सारे पॉइंट्स यहाँ आएंगे। तो ये मैंने यहाँ लिखवाया क्योंकि अर्बन का टॉपिक है, लेकिन इसका आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, इसका आंसर कास्ट वाले। हाँ हाँ, वो ऐसे तो लिख ही सकते हो, बट एक जो चंक ऑफ कंटेंट 20 मार्कर है ना, तो एक रिलेटिव चंक ऑफ कंटेंट जो है वो आपको कास्ट वाले टॉपिक में मिलेगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, ये भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो जितना अभी तक किया था उसके तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब 2 मिनट दे रही हूँ, एक बार फिर से जल्दी से स्लम्स रिवाइज करो, एक सवाल पूछना है इसलिए दे रही हूँ। पढ़ के ये समझ आ रहा है स्लम इज अ डिप्राइव्ड एरिया, ये समझ आ रहा है कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। इसका मतलब है स्लम्स को हटा देना चाहिए। इफ वी वांट एवरीवन टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ देन द स्लम्स नीड्स टू बी रिमूव्ड। तो डिस्पाइट नोइंग ऑल ऑफ दिस, व्हाई वी आर नॉट एबल टू टच स्लम्स? Why instead of a transitional problem it has become a permanent structural problem? अब स्लम्स को आप हटा नहीं सकते, जैसे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी डिबेट कर लो, रिजर्वेशन हटाना अब मुश्किल है, कोई भी सरकार हाथ नहीं रखेगी, वोट बैंक है। वही रीजन है स्लम्स का, इट इज द मोस्ट पोलिटिकली एनफ्रेंचाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर योर पोटेंशियल वोट बैंक, दैट इज व्हाई नोबडी वांट्स टू टच स्लम्स। ये एक रीजन हुआ, और बताओ।
there exists a reciprocal symbiotic relation between the workplace. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि चीप डोमेस्टिक लेबर या चीप वर्कर्स यू गेट बिकॉज दे आर रिसाइडिंग इन स्लम्स. तो वो एक रेसिप्रोकल ऑब्लिगेटरी रिलेशन बना हुआ है. दैट इज व्हाई नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद ईच अदर. दूसरा पॉइंट हो गया. और बताओ. एग्जैक्टली गवर्नमेंट के साथ नेक्सस एग्जिस्ट करता है. और कैसे एग्जिस्ट करता है? जब भी आप कोई इलेक्शन की रैली वगैरह निकालते हो, आपको भीड़ चाहिए. यहीं से भीड़ आती है. 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी उस एरिया में जिस रेट पे मिल जाए. सो दे आर द वंस हु एक्ट एज दैट नेक्सस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल हु आर लिविंग इन द स्लम. वील टेक दिस पॉइंट. और बताओ. मतलब नहीं कर पा रहे. नहीं कर पा रहे. और सबसे बड़ी बात है वो डिमांड भी नहीं कर रहे. मैंने अभी तो आपको बताया कल्चर ऑफ पॉवर्टी है. उनको फील ही नहीं हो रहा कि वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड है. तो जब वो डिमांड नहीं कर रहे तो स्टेट को क्या जरूरत है देने की? स्टेट ने दिया था अभी. ये दिल्ली का ही एग्जाम्पल था कि उन्होंने एक पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना के दिया था. उसको 2 महीने में बिल्कुल स्लम जैसी हालत कर दी. उसका रीजन है यार, मैंने आपको शायद बताया हो, अमर्त्य सेन का इंडाउमेंट एंड एंटाइटलमेंट. इंडाउमेंट मतलब होता है कि मैं इसको 5 लाख रुपए दे रही हूं, जाओ बिजनेस चला लो. अब इसको पता ही नहीं बिजनेस करते कैसे, तो वो 5 लाख रुपए पट. वैसे ही आपने स्लम्स के लोगों को रीसेटल कर दिया. आपने उनको एक कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया, घर रहने को दे दिया, सब दे दिया. बट आपने उन्हें बेसिक सिविक सेंस तो सिखाया ही नहीं कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैसे करते. वो आज भी घर के बाहर कूड़ा डाल देते. वो आज भी दोनों पड़ोसी सामने सामने इसी बात पे लड़ रहे हैं, झाड़ू से कूड़ा उसकी तरफ, झाड़ू से कूड़ा इसकी तरफ. उनको आपको सिखाना पड़ेगा ना. दिस इज अ बेसिक थिंग. आप सिर्फ एंडाउमेंट इंश्योर नहीं कर सकते हो, आपको एंटाइटलमेंट इंश्योर करना पड़ेगा. उनकी गलती नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं. यू हैव टू टीच देम दैट हाउ टू लिव इन अ प्रॉपर हाइजीनिक मैनर. अब ऐसे में क्या हो रहा है, अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं भी है तो दे आर नॉट क्लेमिंग इट. वो अपने आसपास की जगह को साफ नहीं रख रहे हैं. वो आज भी कूड़ा वहीं कहीं पे भी फेंक देते हैं. तो वो जो कम्युनिकेबल डिजीज की प्रॉब्लम पहले थी वो आज भी. सो दैट सिविक सेंस हैज टू बी इनकलकेटेड इन दैट. और कोई पॉइंट लिखो, एक हेडिंग डालो. व्हाई स्लम्स रिमेन्स अ परमानेंट स्ट्रक्चरल इशू. Why slums remain a permanent structural issue? First, slum dwellers forms a significant vote bank. Slum dwellers forms a significant vote bank. Hence, government avoid eviction. Hence, government avoid eviction. Second, slum dwellers have internalized exclusion and stigma. Slum dwellers have internalize exclusion and stigma, leading to, inverted commas में लिखना, myth of marginality. Myth of marginality. जेनिस पर्लमैन का कॉन्सेप्ट है. Myth of marginality. जेनिस पर्लमैन. अभी तो बताई थी वो वाली बात. हाँ, वो लिख सकते हो, लेकिन वो यहां का पॉइंट नहीं बन रहा. जहां पे हम कह रहे हैं ना मिथ ऑफ मार्जिनलिटी, तो वो यही तो पॉइंट है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कहां रह रहे हैं. उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया है वो एक्सक्लूजन. इसमें ऑस्कर लुइस का कल्चर ऑफ पॉवर्टी भी लगा सकते हो. नेक्स्ट, slum residents are mobilized
as political support, in rallies, political support in rallies, in exchange for basic services or protection, in exchange for basic services or protection, basic services or protection. Basic services or protection. Next point. According to MSA Rao, informal economy and slums co-evolve and stabilize each other. Co-evolve and stabilize each other. यही वाला जो पॉइंट अभी हमने दिया था कि अर्बन इकोनॉमी तो थ्राइव ही इनफॉर्मल सेक्टर पे कर रही है, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ द मतलब चीप डोमेस्टिक हेल्पर्स या स्ट्रीट वेंडर्स. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू अरविंद पनागड़िया, administrative inertia according to Arvind Panagadia, administrative inertia is the major hurdle in slum development, क्लियर है? तो हो सकता है कभी सवाल ये भी बन जाए कि डिस्पाइट नोइंग द डेप्रिवेशंस, व्हाई द स्लम्स हैव बिकम अ परमानेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, हम स्लम्स को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, तो वो भी आप. या क्वेश्चन आ जाए चैलेंजेस रिलेटेड टू स्लम, सो वन ऑफ द चैलेंजेस रादर देन रिमेनिंग अ ट्रांजिशनल इशू, इट हैज बिकम अ परमानेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, और उसमें आप ये सारे पॉइंटर्स दे देना. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो एक लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क लिखो. Slum proliferation in India is not a byproduct of migration, but reflects deeper policy failure, political incentives and economic structures. UN Habitat कहता है slum is not a problem, slum is the result of deeper problems. Did you get the point? स्लम प्रॉब्लम नहीं है, स्लम तो रिजल्ट है क्योंकि और डीपर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं. वो डीपर प्रॉब्लम्स जैसे पॉलिटिकल इंसेंटिव्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिसी फेलियर्स. तो एक लाइन इसमें ऐड करो. ओनली अ सिस्टमिक रिफॉर्म एंड नॉट कॉस्मेटिक स्लम क्लियरेंस, only a systemic reform and not cosmetic slum clearance can offer a lasting solution. अब क्लियर है स्लम्स? ठीक है, तो अब कोई भी सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स आए वो पिछली क्लास में किया था, प्रॉब्लम ऑफ स्लम एंड हाउसिंग आए तो इस क्लास में किया. अब एक हेडिंग डालेंगे,
इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉइंट्स आप दोगे. इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मैं प्रॉब्लम्स नहीं पूछ रही, मैं इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन पूछ रही हूं. 5 मिनट दे रही हूं, पेंसिल से या रफ में पॉइंटर्स लिखो, और कम से कम मुझे 7 से 8 पॉइंट्स चाहिए. टेक योर टाइम, जितना पिछली और अभी की क्लास में पढ़ा था सब जोड़ जाड़ के मुझे इम्पैक्ट बता दो बस. मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रही, मैं ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन पूछ रही हूं. आप पहले लिखो. आई राइट टू नो व्हाट आई थिंक, स्टीफन किंग का स्टेटमेंट है. जब तक लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि सोच क्या रहे हो. बताना है. अच्छा ठीक है. एक बात है, मैं बार बार कह रही हूँ, हेडिंग्स के अराउंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, पॉइंट्स के अराउंड नहीं. पॉइंट्स तो मुझे पता ही आप लोग दे दोगे, मैं हेडिंग्स ढूंढ रही हूँ. जैसे अगर कभी कोई पूछ ले इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मैं जनरली, मैं ये नहीं कह रही यही हेडिंग बनाएंगे, मैं जनरली कह रही हूँ कि क्या कुछ इस तरह की हेडिंग बन सकती है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन. अब इसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट, रिलीजन, पॉइंट्स खुद खुद आ जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये किया जा सकता है. फिर इम्पैक्ट ऑन हेट्रोजिनिटी, अनोनिमिटी, इंडिविजुअलिज्म. अर्बनिज्म किया था लुई वर्थ का, वो वाला पॉइंट डाला जा सकता है. हाउ इट इज इम्पैक्टिंग सोशल रिलेशनशिप्स, हाउ इट इम्पैक्ट्स अब इसमें डरकाइम डाल दो, मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. नहीं तो टर्निस का पर्सपेक्टिव, Gemeinschaft and Gesellschaft, that could have been added here. अब डालो स्लम्स. मैं ये नहीं कह रही इस आंसर में, इन जनरल कह रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह की भी हेडिंग्स बनाई जा सकती. इम्पैक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन, इम्पैक्ट ऑन सॉलिडारिटी, इम्पैक्ट ऑन इनइक्वालिटी, इम्पैक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप. एक और हो सकता है जब इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, सो इम्पैक्ट ऑन सोशल. अर्बनाइजेशन की वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ क्लास नहीं हो रहा है. एक आपके पास अर्बन पुअर क्लास आ रही है जो कि स्लम्स में रह रही है, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास आ रही है, सैलरीड प्रोफेशनल क्लास है, और एक कॉर्पोरेट इलीट इमर्ज कर रहा है. हाँ हाँ, तो सोशल इनइक्वालिटी का ही पार्ट है.
अरे मुझे स से चाहिए था सब, इसलिए मैंने मैंने हाफ इकोनॉमिक डाल दो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ओवरऑल एट द नेशनल लेवल पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी। हाँ ठीक है, आप इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ मिडिल क्लास भी डाल सकते हो, और प्रोलिफरेशन ऑफ मिडिल क्लास में भी जो हमने पर्सपेक्टिव वेबर वगैरह का लिखा है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर हेडिंग से बनाओगे आपको यकीन नहीं होगा, एक बार बना के ब्रेनस्टॉर्म करके देखो, आपको खुद को नहीं पता होगा आपको इतने पॉइंट्स आते थे। हेडिंग आते ही फिर आपका दिमाग इसी बात पे जुड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। फिर जब आपने एग्जाम्पल, अब तो इसमें से तो खुद ही बना लोगे, न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली हो रहा है, खुद ही बना लोगे कि किनशिप में फिक्टिव किनशिप इज बिकमिंग more significant, मैरिज में न्यू फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, डीसेक्रेलाइजेशन, डी रिचुअलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ मैरिज, ऑल्टरनेटिव्स टू मैरिज लाइक लिव इन रिलेशनशिप। बनाने को बैठो तो इन पे ही एक एक पूरा 10-10 नंबर का आंसर बन जाए। रिलीजन, एक तरफ सेक्युलराइजेशन ऑफ रिलीजन हो रहा है, दूसरी तरफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म हो रहा है, ग्रोथ ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स हो रहे हैं, वो सारी बातें। कास्ट की अगर हम बात करें तो कास्ट इज नाउ, कास्ट बेस्ड और एसोसिएशंस आर इमर्जिंग इन अर्बन एरिया, चाहे वो मैरिज एसोसिएशंस हो, एजुकेशनल एसोसिएशंस हो, पॉलिटिकल एसोसिएशन हो, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, सब डालो। हाँ नहीं, डाल सब सकते हैं बेटा, लेकिन डाल देना मतलब अर्बनाइजेशन, कार्ल मार्क्स डालना है, मैं बेटर बताती हूँ, एलियनेशन डालो यहाँ, दैट इज मोर सूटेबल टू बी रिटन हियर। सो दिस इज, अब एक तो ये तरीका हो गया, सपोज करो तुमको ये तरीका स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं इसलिए सिखा रही हूं, एक ही टेम्पलेट तो हर जगह यूज नहीं करोगे ना, तो एक टेम्पलेट ये, दूसरा इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल एंड नेशनल लेवल, ये डिवाइड कर दो, इसमें भी काम आ जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, या फिर आप एलियनेशन, ये बात हो सकती है, मोबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेक्युलर हायरार्की। हाँ बोलो, ये इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी ना है, आज तुम वो खा के नहीं आई हो जो उस दिन खाई थी। सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक यहां लिखना अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जीएस का पेपर नहीं है, सोशियोलॉजी का पेपर है, इसलिए वो सोशल कंपोनेंट का होना ज्यादा जरूरी है। हाँ, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, ऐसे करके बनाओगे आंसर, इसीलिए तो सर ढूंढ के लिखा है ये मैंने, मेरे नाम से ऐसे इसलिए थोड़ी ना सर बना रही हूँ, वो तो सोशियोलॉजी का पेपर है इसलिए ये सब बना रहे हैं। इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? तो ये कहीं ना टेम्पलेट्स याद रखना कि अगर एग्जाम में आएगा तो आई विल बी यूजिंग दीज टेम्पलेट्स, ठीक है। चलो अब एक एक पॉइंट्स लिखवा देती हूँ मैं, अरेंजमेंट आप करोगे घर जाके, मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, कल्चरल डाइवर्सिटी। हाँ, एक और पॉइंट अच्छा हो सकता है, अर्बनाइजेशन का रूरल अर्बन कॉन्टिनम क्रिएट हो रहा है, ये भी डिफ्यूजन ऑफ कल्चर इन रूरल एरियाज भी हो रहा है, आईटी इंटीग्रेशन हो रहा है रूरल अर्बन एरियाज का, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी लिखते हैं, लिखो यार। बिल्कुल लिख सकते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, जब तक यूपीएससी नहीं पूछे ना तब तक पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखो, वो ना बड़ा नैरो कर देता है अप्रोच को, पॉजिटिव नेगेटिव को। इनफैक्ट एक और इंपैक्ट डिस्कस कर सकते हो, स्ट्रक्चरल इंपैक्ट एंड द कल्चरल इंपैक्ट। स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, कल्चर में वो रिलेशनशिप आ जाएगा, अर्बनिज्म आ जाएगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी, रूरल अर्बन कॉन्टिनम आ जाएगा स्ट्रक्चरल इंपैक्ट में। तो स्ट्रक्चरल कल्चरल इंपैक्ट, ये एक तरीके का इंपैक्ट डिस्कस कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप, सॉलिडारिटी, क्लासेस, ये एक तरह का हो सकता है। एक हो सकता है इंडिविजुअल, सोसाइटल एंड नेशनल, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, पॉइंट्स लिखो। इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, पहला, emergence of urbanism as a way of life, emergence of urbanism as a way of life, emergence of urbanism as a way of life। मैं इसे elaborate नहीं करा रही क्योंकि मैं करा चुकी हूं, बट जब आप आंसर लिखोगे तो आप लुई वर्थ का पूरा पर्सपेक्टिव डालोगे कि व्हाट इज अर्बनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग सोशल रिलेशनशिप्स,
changing social relationships. Changing social relationships. For example, a shift from community-based relationship community-based relationship to contractual and goal-oriented relationship. To contractual and goal-oriented relationship. तो टर्नेस का कॉन्सेप्ट फ्रॉम गमाइन शाफ्ट टू गजेल शाफ्ट. गमाइन शाफ्ट मतलब क्लोज निट ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड गजेल शाफ्ट इज modern society, impersonal society, a society which is driven by self interest, a contractual society. ये मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है किसी क्लास में, मैंने एप्लीकेशन बताया था ये वाला. नेक्स्ट, इसी में एक स्टडी डाल दो. अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड गोल्ड, इसी पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड गोल्ड, study of Lucknow rickshaw pullers, study of Lucknow rickshaw pullers showed that occupational interaction cut across the caste lines, occupational interaction cut across the caste lines, but ritual caste identity persisted privately. Ritual caste identity persisted privately. यही मैं बता रही थी आपको कि वर्क प्लेस पे कास्ट डजंट मैटर, बट प्राइवेट लाइफ में कास्ट स्टिल matters. Ritual caste identity persisted privately. Next, transformation of economic activities. Transformation of economic activities. Applied Durkheim's complex division of labor. Applied Durkheim's complex division of labor. यही है, complex division of labor है, work specialize हो रहा है, economic interdependence बढ़ रही है, which is creating organic solidarity. तो apply Durkheim's complex division of labor and link it with organic solidarity. Link with organic solidarity. Next, breakdown and adaptation of traditional institutions. Breakdown and adaptation of traditional institutions. मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, योगेंद्र सिंह अभी डिटेल में पढ़ेंगे, योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. तो इसी में लिखो, योगेंद्र सिंह argues that modernization in India involves modernization of tradition and not replacement. Modernization of tradition and not replacement. For example, urban caste associations organizing festivals, marriages, business network, etc.
इस एक पॉइंट में आपको वो पॉइंटर भी मिल गया होगा कि अर्बन सेटलमेंट में रूरल कास्ट किनशिप इम्प्रिंट्स कैसे देखने को मिलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना 20 मार्कर का, कि अर्बन में एरियाज में भी कास्ट एसोसिएशन दे आर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल, दे आर ऑर्गेनाइजिंग मैरिजेस, मारवाड़ी बिजनेस नेटवर्क, ठीक है, बनिया business association, these are nothing but business networks which are existing in urban area. तो urban area में भी caste kinship उतना ही relevant है जितना rural areas में है, but manifestation has underwent a change. Is that clear? Next, impact on rural areas. Impact on rural areas. एक पर्सपेक्टिव दे रही हूं. अकॉर्डिंग टू एमएसए राव, अकॉर्डिंग टू एमएसए राव, three different types of impact. According to MSA Rao, three different types of impact. पहला, villages sending migrants, villages sending migrants gain remittances. वही माइग्रेंट बाहर जाके जो पैसा कमाते हैं तो वापस भेजते हैं ना विलेज में. सो विलेजेस सेंडिंग माइग्रेंट्स दे गेन रेमिटांसेस एंड प्रेस्टीज. हमारे यहां से इतने लोग शहर गए, सो दैट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज. सेकेंड इंपैक्ट, villages near the towns, villages near the towns, they face pressure of land acquisition. They face pressure of land acquisition. यही होता है क्योंकि उनको एक्सटेंड करना है अर्बन एरिया को. सो नाउ द प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन दीज पीपल टू गिव देयर लैंड. थर्ड इंपैक्ट, सम विलेजेस बिकम्स अर्बन विलेजेस, सम विलेजेस बिकम अर्बन विलेजेस. इसे पेरी अर्बन एरिया कहते हैं. पेरी अर्बन एरिया मतलब अर्बन एरिया के आसपास विलेज था, वो अर्बन एरिया इतना डेवलप हुआ कि वो जो रूरल एरिया है दे स्टार्टेड बिकमिंग अ अर्बन एरिया. जैसे मुनिरका रूरल सेटलमेंट था, नाउ मुनिरका हैज बिकम एन अर्बन पॉकेट. एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा. फॉर एग्जाम्पल मुनिरका इन दिल्ली, मुनिरका इन दिल्ली, मुनिरका इन दिल्ली, ये रीजन है दिल्ली में यार. मुनिरका इन दिल्ली, ये रूरल एरिया हुआ करता था, अब एक अर्बन सेटलमेंट बन गया है. ठीक है, एमएसए राव का पर्सपेक्टिव समझ आया कि इंपैक्ट क्या है. ये अक्सर क्वेश्चन इस तरह से, इस पे डायरेक्टली नहीं बनेगा, लेकिन अगर अर्बन रूरल एरिया का इंटर मतलब लिंकेज पूछे तो वहां पे एमएसए राव के पर्सपेक्टिव को डाला जा सकता है. नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑन कास्ट, family and religion. Impact on caste, family and religion. आप अलग अलग भी लिख सकते थे, मैं एक एक पॉइंट तीनों का दे देती हूं. Impact on caste, family and religion. कास्ट में लिखो. According to Andre Bete, there exists caste class intersection in cities. There exists caste class intersection in cities. For example, trade associations, caste-based housing society, etc. Trade associations, comma, caste-based housing society, etc. दूसरा क्या लिखवाया था? फैमिली. फैमिली पे लिखो. According to Talcott Parson, industrial society favors nuclear family structure.
industrial society favors nuclear family structure. Religion. Secularization, comma, religious revivalism, comma, communal politics. ये मैं आपको ऐसे लिखवा के छोड़ रही हूं, आप ऐसे एग्जाम में नहीं लिखोगे, आपको थिंकर्स डालने पड़ेंगे और मैं बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ. कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, व्हाट आर द थिंकर्स, सेक्युलराइजेशन, सेक्युलराइजेशन में डिफरेंशिएशन, प्राइवेटाइजेशन, डिक्लाइन इन सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन विथ एग्जाम्पल्स, मैंने सब कराया है. डिपेंडिंग अपॉन द मार्क कि कितने नंबर का है, यू विल बी एक्सपैंडिंग दिस. इज दैट क्लियर? ठीक है. एक इम्पैक्ट हम यहां लिख नहीं रहे हैं लेकिन बनता है, impact on the sections, impact on old age people, impact on women. अच्छा पॉइंट बनता है, लिखो. impact on women, impact on women. अच्छा लिख लेते हैं, 2 लाइनें लिखने में क्या ही जाता है. impact on women, इसमें लिखना paradoxical impact, paradoxical impact, paradoxical impact, where on one hand increase FLFP, female labor force participation, increase FLFP, whereas on the other hand increase violence, dual burden, pink collared jobs, feminization of informal sector, etc. ठीक है. फिर एक लिखो, impact on youth, impact on youth. हम अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन यूथ कर रहे हैं ना. हाँ लिखो, पॉइंटर्स में लिख लेना. अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी. Second, youth becoming secularized, youth becoming secularized with respect to marriage, commensality and accommodation, with respect to marriage, commensality and accommodation. Emergence of lifestyle diseases, emergence of lifestyle diseases, वो है ना sedentary lifestyle, McDonaldization of food habits, dependence on technology, so that is creating lifestyle diseases. चौथा लिखो, emergence of yuppies, यपीस का मतलब होता है अपवर्डली मोबाइल प्रोफेशनल क्लास विच इज ड्रिवन बाय कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म. आप इसको न्यू मिडिल क्लास भी कह सकते हो, पर न्यू मिडिल क्लास इसलिए नहीं कहते क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये लोग सब मिडिल क्लास. अपवर्डली मोबाइल प्रोफेशनल क्लास जरूर है, बट वो चीज वो अटेन करेंगे कि नहीं ये पता नहीं. बट ये बात है कि यूथ इज नो लॉन्गर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. All they are concerned is about their own vested interest. जिस पे रील बन जाए वो बना दो. आजकल रील कल्चर चल रहा है.
तो दैट इज यपीस, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. सो इज द इम्पैक्ट क्लियर? वैसे अगर यूथ पे जनरल आता, अर्बनाइजेशन नहीं होता, तो फिर आप कंपेयर करते रूरल यूथ वर्सेस अर्बन यूथ, कि अर्बन यूथ के लिए तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, रूरल यूथ के लिए नहीं हुई हैं. तो ये बात आप मेंशन करते. ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? यूथ पे लिख लिया, विमेन पे लिख लिया, एक ओल्ड एज डाल दो. ओल्ड एज में पॉपुलेशन डायनेमिक्स में डिटेल में कराऊंगी, मैं बस एक लाइन यहां लिखवा देती हूं. चेंजिंग वैल्यू सिस्टम plus disintegration of joint family, changing value system plus disintegration of joint family has aggravated the vulnerability of old age people, has aggravated the vulnerability of old age people, has aggravated the vulnerability of old age people. क्लियर है? ओल्ड एज को मैं बहुत डिटेल में कराऊंगी, ऑलमोस्ट हर दूसरे साल सवाल आता है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मतलब इसी में इंपैक्ट ऑन क्लास फॉर्मेशन. इंपैक्ट ऑन क्लास फॉर्मेशन, इंपैक्ट ऑन क्लास फॉर्मेशन. Rise of salaried middle class, rise of salaried middle class, growth of corporate elite, growth of corporate elite, and expansion of urban poor, and expansion of urban poor. क्लियर है? बस अब लास्ट लिखेंगे, रूरल अर्बन कॉन्टिनम. रूरल अर्बन कॉन्टिनम. रूरल अर्बन कॉन्टिनम कहता है क्योंकि अर्बन एरिया ग्रो कर रहा है, जो अभी मैं 2 मिनट पहले भी आपको बता रही थी, दैट पीपल आर माइग्रेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू अर्बन एरिया. अर्बन एरिया का जो कोर है वो उतना अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वो फ्रिंजेस पे धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है. जब वो एक्सपैंड कर रहा है तो वो नियर बाय रूरल एरियाज को विद इन इट्स एम्बिट इनगल्फ कर रहा है. तो अब कुछ कुछ ऐसे ट्रांजिशनल एरियाज आ रहे हैं जिसको पेरी अर्बन कहते हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट्स रूरल के हैं और कुछ एलिमेंट्स अर्बन के हैं. तो अब ऐसे एरियाज क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ये मेरा अर्बन एरिया था, ये अर्बन एरिया एक्सपैंड होता गया, ये मेरा रूरल एरिया था, जिसकी वजह से अब ये सेंटर में एरिया आ गया जिसको हम पेरी अर्बन कहते हैं. इसमें आपको एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, और इसमें आपको रियल एस्टेट भी देखने को मिलेगा. सो दिस इज नथिंग बट फ्लूइड बाउंड्रीज आर गेटिंग क्रिएटेड. इसको रूरल अर्बन कॉन्टिनम कहते हैं. इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखो, रूरल अर्बन कॉन्टिनम का रेड फील्ड का कॉन्सेप्ट है. रेड फील्ड ब्रैकेट में लिख लो, रेड फील्ड. पहला पॉइंट है फ्लूइड बाउंड्रीज. फ्लूइड बाउंड्रीज मैं एक एक पॉइंट लिखवाऊंगी और समझाती जाऊंगी. फ्लूइड बाउंड्रीज, उसमें लिखेंगे पेरी अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज आर इमर्जिंग अराउंड मेजर नहीं आएगा, अराउंड मेजर इंडियन cities such as Delhi, Bengaluru, Hyderabad, etc., which are neither
which are neither purely rural nor urban, which are neither purely rural nor urban. जैसे वो द्वारका और नजफगढ़ वाली जो पूरी बेल्ट है, वो एग्जाम्पल है फ्लूइड बाउंड्री की. जो बेंगलुरु के चारों तरफ व्हाइट फील्ड एक्सटेंशन, अगर कोई वहां रहे तो वो समझेंगे. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड बाउंड्री. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है. एग्जाम्पल देने की जरूरत है या आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है. हाँ, एक काम ये कर सकते हो, बनाते वक्त ये लिख सकते हो कि ये जैसे मेरा पेरी अर्बन एरिया है, तो इसमें आपको एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी दिखेंगी और रियल एस्टेट भी दिखेगा. ऐसे बना लो. पेरी अर्बन एरियाज में इट हैज एग्रीकल्चर ऑल्सो, इट हैज स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल्सो, एंड इट हैज रियल एस्टेट ऑल्सो. क्योंकि अब तो वर्क फ्रॉम होम है, तो गेटेड कम्युनिटीज वगैरह यहां बन जाती हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग होती है, लोग घर बैठ के काम कर लेते हैं. एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रियल एस्टेट. तो ये ना तो प्योरली रूरल है नॉर प्योरली अर्बन है. नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे रूरल अर्बन कॉन्टिनम का. माइग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस. माइग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस. माइग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस. अब जैसे ये एक एरिया है, रूरल एरिया, यहां से लोग माइग्रेट करके गए. अभी हमने एमएसए राव का पर्सपेक्टिव लिखा था कि बदले में वो रेमिटांस भेजते हैं, तो आपको रूरल अर्बन इंटरडिपेंडेंस दिख रही है ना. फिर हो सकता है कि ये लोग जब लीन सीजन हो तब ये माइग्रेट करते हैं, अदरवाइज दे कम बैक टू देयर ओन प्लेस. इफ यू कैन रिलेट सर्कुलर माइग्रेशन, सीजनल और टेम्पररी माइग्रेशन. या सपोज करो इसी एरिया में रहते हैं, लेकिन जब भी छठ पूजा होती है या कोई मेजर त्योहार होता है तो वापस अपने घर चले जाते हैं, ये होता है. दूसरा कैसे होता है, लेट अस सपोज ये अर्बन एरिया है, यहाँ पे लोगों के पास अब पैसा आ गया, अब ये कहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं? गाँव में, क्योंकि शहर के दाम तो बढ़ गए. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वहीं करोगे ना जहाँ एकदम बेस प्राइस से खरीदा जाएगा. सो नाउ दे आर इन्वेस्टिंग ऑल देयर मनी इन द रूरल लैंड. तो माइग्रेशन, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको. सो दैट इज नथिंग बट रूरल अर्बन कॉन्टिनम. तो इसी में लिखो. फॉर एग्जाम्पल migrant workers sending remittances, comma, traveling back to their villages during harvest season or festivals. And third, urban migrants investing in buying land in villages. Urban migrants investing in buying land in villages. हमने रूरल अर्बन कॉन्टिनम दो तरह से पढ़ा. एक, जो बाउंड्रीज मर्ज हो रही हैं, ब्लर हो रही हैं, अब रूरल अर्बन डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है. दूसरा है क्योंकि आपस में माइग्रेट कर रहे हैं तो एक तरह का इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बना हुआ है. तीसरा, कल्चरल डिफ्यूजन. एग्जाम्पल, बॉलीवुड म्यूजिक, कॉमा, फैशन. आजकल रूरल यूथ भी बराबर से फैशन कर रहा है. सो दैट इज नथिंग बट कल्चरल डिफ्यूजन, कॉमा, सोशल मीडिया ट्रेंड्स. आजकल वहां पर भी यूथ इन्फ्लुएंसर बन गए हैं. नहीं, एंड दे आर डूइंग वेल. उसका रीजन है, लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है रूरल लाइफ जीना, कि अरे खुद भले जाके नहीं जिए लेकिन वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे चूल्हे पे खाना बन रहा है, कैसे वो खेत पे जा रहे हैं, कैसे काम हो रहा है. इमेजिन बाहर वाले फैसिनेट, हम खुद कितना अलग अलग लोग हैं, इतने हम डाइवर्स हैं, विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो कि थ्रू सोशल मीडिया एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चल रहा है, इवन इफ इट इज रूरल अर्बन कल्चर. दैट इज नथिंग बट कल्चरल डिफ्यूजन.
नेक्स्ट फोर्थ, आईटी इंटीग्रेशन, फोर्थ पॉइंट। ये गिडन्स का पर्सपेक्टिव था, एंथनी गिडन्स का, कि कैसे मॉडर्निटी कनेक्ट करती है सोसाइटीज को। पर्सपेक्टिव ऑफ एंथनी गिडन्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। मैं एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। टेलीमेडिसिन, आज गांव में बैठा इंसान भी ऑनलाइन, you can take the prescription, or you can take the consultation from the doctor. That is nothing but telemedicine, comma, online education. Digital payments, आजकल फार्मर्स एप्स यूज करते हैं ना फॉर वेदर फोरकास्टिंग, क्रॉप प्राइसेस, दैट इज नथिंग बट आईटी इंटीग्रेशन. दैट हाउ मॉडर्निटी इज पेनिट्रेटिंग इन द रूरल एरिया, एंड इट इज द टेक्नोलॉजी विच इज कनेक्टिंग रूरल विथ अर्बन. सो रूरल अर्बन कॉन्टिनम. इज इट क्लियर? और एक लास्ट लिखो, ब्लरिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ब्लरिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एम.एन. श्रीनिवास का पर्सपेक्टिव है, ब्लरिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एग्जाम्पल लिख लो. अच्छा, ये फिर से मैं एक बार क्लियर कर देती हूं, ये पर्सपेक्टिव एम.एन. श्रीनिवास का, एग्जाम्पल्स उनके नहीं है, वो मैं दे रही हूं आपको. एग्जाम्पल लिखो, फार्मर्स वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड. Farmers working on the agricultural land along with nearby factories, ये पॉइंट समझ आया? क्योंकि अब तो इतनी फ्लूइड बाउंड्रीज हो गई हैं कि एक स्टेप रखा तो अर्बन एरिया और एक स्टेप उधर रखा तो रूरल एरिया. सो दे आर वर्किंग ऑन देयर लैंड, एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग इन द नियर बाय फैक्ट्रीज. ये भी तो हो सकता है, लेट्स सपोज आप वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, या लेट्स से आप डेयरी फार्मिंग, तो मिल्क वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन बेचने आप नियर बाय सिटीज में जा रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो ओवरलैपिंग और ब्लरिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक बस एग्जाम्पल और लिख लो. हाँ यार, सब आ जाएगा. जहां आप शहर में बेच रहे हो सामान, गांव में उगा रहे हो और डेली बेसिस पे कर रहे हो, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो लिखो, फार्मर नियर सिटीज सप्लाइंग मिल्क, वेजिटेबल्स एंड पोल्ट्री to urban markets. Poultry to urban markets. क्लियर है? ठीक है. तो ये एक टॉपिक और खत्म होता है, इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. अब मुझे वे फॉरवर्ड बताना है, वो मैं कल बताऊंगी. कल का एजेंडा है अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक खत्म करेंगे. कल हम करेंगे वे फॉरवर्ड ऑफ अर्बनाइजेशन, चाइल्ड लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर एंड वर्किंग क्लास. बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, तो वो मतलब आराम से 2 घंटे में, 2.5 घंटे में हो जाएगा. एक क्वेश्चन लिख लो यार, सॉरी बंद नहीं करो आज का, फिर नहीं तो मैं भूल जाऊंगी. यूपीएससी क्वेश्चन है, लिख लो. वो जब मैं कल वे फॉरवर्ड कराऊंगी ना, उसी में स्लम्स वाला वे फॉरवर्ड आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन कहां गया? एक सेकेंड. हाँ, elaborate the causes. गजब क्वेश्चन बनाए हैं. elaborate the causes, consequences and other concerns of growth of urban settlement in India. मतलब सब पूछ लिए जो 2 क्लास में पढ़े थे. causes, consequences and other concerns of growth of urban settlement in India. 20 नंबर का, बहुत कम है 20 नंबर, 3 पेज में क्या ही लिखेंगे, पर चलो लिखना. और कोई क्वेश्चन है? एक सेकंड रुको. क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखवाया है कि सूटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ रीसेंट ट्रेंड? नहीं लिखवाया ना. एक क्वेश्चन और लिख लो.
examine with suitable examples the recent trend in the growth of urban settlement in India. Growth of urban settlements in India. टेन मार्कर. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रही हूं क्योंकि ये ना बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि उस साल में कौन सी स्कीम या पॉलिसी न्यूज में थी. जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. अब ये ना जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, ये बिल्कुल इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस साल क्या न्यूज में है. तो जिस साल, फिर रीआइटरेट कर रही हूं, जितना हम क्लास नोट्स कर रहे हैं, जितना मैं आपको प्रिंटेड मटेरियल दे रही हूं, दैट इज मोर देन इनफ. अगर कुछ भी न्यूज में होगा तो उसका प्रिंटेड मटेरियल मैं आपको दे दूंगी. तो अभी भी जैसे मैंने आशा वर्कर्स पे एक प्रिंटेड मटेरियल अपलोड किया है फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो आप सोशियोलॉजिकल वाले चैनल पे फाइल्स में जितने भी प्रिंटेड मटेरियल हैं, चाहे मैरिटल रेप हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे वायलेंस हो, वो सारा आप एक जगह इकट्ठा करके बस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ लेना. दैट वुड बी मोर देन इनफ. इज दैट क्लियर? एक स्टूडेंट बोल रहा है सिलेबस मार्क करा दो. मैं पक्का कल करा दूंगी. मैं वो वाला ना एक्चुअली पीछे दिखाना, वो मुझे भेजना था सर को, वो फाइल मैंने नहीं दी है. वो एक बार फाइल अपलोड हो जाएगी तो मैं इजीली आपको मार्क करा दूंगी. ठीक है, चलो.